Hello everyone. Today I am again at Pasaidan Anath Ashram, Alandi. I am Professor Kedar Dev from Pune, and I come here on most Sundays, every Sunday almost, to conduct certain classes for 9th and 10th standard students over here. Okay, all these students sitting over here, you can see, all students are hardworking. They have their own values. बहुत अच्छा कल्चर है इन लोगों का. सो यहाँ पे पढ़ाने के लिए भी अच्छा लगता है. इट्स ए डिवाइन फीलिंग. आई रियली लव दिस टू कम हियर एंड टीच. ओके, एनीवे, नाउ आज क्या लेने वाला हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू टेक वन 10th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑन अपोलोनियस थ्योरम. Okay, geometry, maths 10th standard problem on Apollonius theorem. So if you can just bring the camera closer, I will just explain this. Triangle PQR is given, okay, such that PM is the median of triangle PQR. Median means madhyaga. मराठी मध्ये त्याला मध्यगा म्हणतात, which I have already told to the students. PM is the median and certain sides are given. PQ is 40, PR is 42, PM is 29. Question asked is triangle PQR ची परिमिती काढा. आता परिमितीचा अर्थ perimeter. What is the perimeter of triangle PQR? That is asked. Okay. So whenever the median is given, we use Apollonius theorem. जब कौन से भी ट्रायंगल में मीडियन दी है तो अपोलोनियस थ्योरम का यूज करते हैं. ओके, सो we are going to use Apollonius theorem and see how to get the perimeter of triangle PQR. Now I have told the students how a small trick to use Apollonius theorem. I'll just explain that trick so that the others can also benefit. See, what you should do is keep your pen on the median. Okay, and first I will say, students बाद में बोलो, पहले मैं कैमरा को एक्सप्लेन करता हूँ. While using Apollonius theorem, I will say shift the pen like this: PQ squared plus PR squared is equal to 2 times PM squared plus 2 times QM squared. Look here. In Marathi, PQ वर्ग अधिक PR वर्ग बरोबर 2 PM वर्ग अधिक 2 QM वर्ग. So shifting of pen does the trick to remember. Small tricks are there which the students will like and appreciate and also involve in their method of teaching. Okay, so here we have Shivraj today. I have called Shivraj from among the students to explain us what has to be done. Okay, so I'll ask certain questions to him. Okay, Shivraj, आपल्याला त्रिकोण PQR ची परिमिती काढायची. तर माझा प्रश्न असा आहे की अपोलोनियस थिअरम का वापरायचं? वाय डू वी यूज अपोलोनियस थिअरम? कुठल्याही त्रिकोणामध्ये जर मध्यगा जर आपल्याला काढायची असेल तर अपोलोनियस थिअरम वापरायचं. ओके, मध्यगा मीन्स मीडियन. मध्यगा काढायची असेल असं नाही, मध्यगा दिलेली असते. समटाइम्स यू हॅव टू फाइंड इट. नाहीतर मग मध्यगा दिली असते म्हणजे यू हॅव टू यूज अपोलोनियस थिअरम. It means whenever a median is given to you to us, we use Apollonius theorem. Okay. Now let us all use Apollonius theorem. Let us see how the students react. Okay. Now I'm keeping the pen over here. Right? Students तयार आहात का तुम्ही? Apollonius theorem नीट सांगायचं आहे. पेन मध्यगावर ठेवलाय, करा चालू. PQ वर्ग अधिक PR वर्ग बरोबर 2 PM वर्ग अधिक 2 QM वर्ग. करेक्ट. ऑब्झर्व, बोलू नका. आता मी सांगतो. मीडियन PM वर पेन ठेवलाय. PQ वर्ग अधिक PR वर्ग बरोबर 2 PM वर्ग अधिक 2 QM वर्ग. Clear? Apollonius theorem. In the exam also you can keep a pen. But while keeping a pen, see that your pen is not leaking. पेपर खराब होईल तुमचा. So be careful of that. चला पुढे. We have written down Apollonius theorem. Okay, start. पुढे काय करायचं? आता आपण इथं तुम्ही म्हटल्याबरोबर इथं सूत्र वापरलंय. आता या सूत्राच्या किमती आपण टाकल्या इथं. तर 40
40चा वर्ग इथं घेतलाय आणि 42चा वर्ग इथं घेतलाय आणि 29चा वर्ग इथं घेतलाय आणि Correct. त्याला गुणिले 2 केले. Correct. हे किंमत जशाच तशी खाली घेतली आणि या दोन संख्येची बेरीज केली. We just substituted the values, square of this, square of this, square of this, and then sum of these two. Beries means sum. Sum of these two is 3364. 3364. 2 into 29 squared is 841. That is 1682. पुढे. नंतर या दोन संख्येची वजाबाकी केली आपण. नंतर हे संख्या जशाच तशी खाली घेतली आणि या संख्येने भागिलं म्हणजे भागाकार केला. 2 खाली घेतलं आपण. 841 841. QM squared is 841. So square root में वर्गमूल 841 किती आहे? 29 सेंटीमीटर. 29 सेंटीमीटर म्हणजे 29 सेंटीमीटर. ऑब्झर्व ऑल ऑफ यू, 29 सेंटीमीटर एवढं मिळालं. हा. आता मला तुम्हाला प्रश्न आहे की MR पण 29 काय आहे? बोला. दोन्ही समान आहेत कारण की PM मध्यक आहे ना. मध्यक म्हणजे M मध्यबिंदू आहे म्हणजे QM आणि MR दोन्ही सारखे आहेत. 29. आता 29 प्लस 29 किती आहे? 58. हा. तर आता इथे तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं. आता इथे दाखवत नाही, फक्त ओरली सांगू आपण. पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR म्हणजे परिमितीमध्ये ऍड ऑल द 3 साइड्स. PQ प्लस QR प्लस PR 40 प्लस 58 प्लस 42. किती उत्तर आले तुमचं? 140 सेंटीमीटर इज द पेरिमीटर. ओके, तर सर्वांना समजलंय का अपोलोनियस काकांचा प्रमेय? आणि अपोलोनियस काकांना केव्हा बोलवायचं? जेव्हा मध्यकात दिली असेल तेव्हा अपोलोनियस काकांना बोलवायचं. क्लिअर? ओके, थँक्यू. आवडला आजचं लेक्चर? ओके. आता थांबा जरा, बसतो. मला आपल्या सरांना 1-2 जरा प्रश्न विचारायचे. आय एम फॅसिनेटेड बाय हिम. सर मला द्या कॅमेरा. तर तुम्हाला इट इज माय टर्न नाउ. ओके. So this is Mr. Wag, proprietor and caretaker. Now we can't call it as proprietor. He is the caretaker of Pasaidan Anath Ashram, Alandi. And many years back he left his job and started यहाँ पे आए. He started taking care of few students. और बाद में he is taking care of all these students. So all credit goes to him. हम लोग सिर्फ संडे को आके सिखाते हैं डूइंग माई जॉब, बट दिस पर्सन इज देयर 24 hours 7 days a week with the students and taking care of the students. So hats off to you sir. तो मुझे पूछना है आपसे कि आपको ये जो मतलब हाउ डू यू गेट द जोश टू डू ऑल दिस, मतलब विदाउट क्या उसको बोलते हैं, विदाउट गेटिंग बोर्ड और समथिंग दैट, हाउ डू यू स्पेंड द डे एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स? क्या करते हैं आप? नमस्ते. अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हम तो ये काम करते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित रहते हैं तो उन बच्चों को एक शिक्षा की धारा में लाने का और उनका जीवन कैसे समृद्ध बन सकता है, कैसे गौरवशाली बन सकता है, ये सपना देखने का और उस पर कार्य करने का. ग्रेट. बच्चों का तो ये देखा जाए तो सवेरे लेके शाम तक वो भी एक दिनचर्या हम जिसको बोलते हैं एक टाइम टेबल की शेड्यूल के अंदर काम करते हैं. ये बच्चे आज हमारे इस आश्रम के अंदर में 5 प्रकार की शिक्षा लेते हैं. जैसे कि पहली शिक्षा यदि अगर बोले तो हेल्थ एजुकेशन है. ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा योगासन आदि करते हैं और अपने हेल्थ के बारे में बहुत जागरूक रहते हैं. क्या खाना नहीं, क्या पीना नहीं है, शरीर का रखरखाव कैसा रखना है, ये भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है और वो बच्चे भी पढ़ लेते हैं. उसके बाद में है कि शरीर से जैसे मजबूत है वैसे हमें थोड़े अपने मन से भी मजबूत होना है. इसलिए बच्चे यहाँ पे हमारा छोटा सा टेम्पल है तो उसके इसमें मेडिटेशन आदि करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं. वेरी नाइस. और उसी मेंटल एजुकेशन में आ जाता है अपना स्कूली जो भौतिक विज्ञान आदि का जो भी एजुकेशन है वो आता है. इसके लिए बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं. अब तीसरा है यहाँ पे हम आलंदी के अंदर में रहते हैं जो संत ज्ञानदेव जी का आप सभी को पता है कि
ज्ञानेश्वरी ये दुनिया की सबसे बड़ी फिलोसॉफी का ग्रंथ भी हम बोल सकते हैं उनको, एक तत्वज्ञान ग्रंथ है। तो फिर इस भूमि में है तो थोड़ा स्पिरिचुअल एजुकेशन भी है, वो लोगों को बताने के लिए नहीं, लेकिन जीवन कैसे जगना, प्रेम, करुणा, शांतिमय जीवन कैसे जीना है अपने को, इसके लिए हम स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद में बच्चों को नैतिक एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, जैसे अभी 15 अगस्त हो गया तो बच्चे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया और हमारी क्या जिम्मेदारियां है, अभी उन्होंने दिए हुए इस फ्रीडम को कैसे आगे हमें अच्छा रखना है या और पारतंत्र में जाना है। तो ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कंपटीशन का जमाना है, नौकरी मिलेंगी ना मिलेंगी कुछ पता नहीं है, तो स्किल एजुकेशन देते हैं, जैसे कि छोटा बड़ा कुछ भी काम हो, कुछ भी रहे, कॉपरेशन मिलके एक दूसरे को सहकार्यता करके कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस भी वो आगे चल के खड़ा कर सके। इसके पीछे तो यही है कि बच्चे रुकने नहीं चाहिए, उन्होंने अच्छे जो जिंदगी उन्होंने पास्ट में देखी है वो फ्यूचर में वो देखे नहीं, बस इतना ही है, बाकी तो और कुछ नहीं। सर के बारे में एक मुझे बोलना था, वो एक रेप्यूटेड एमएनसी में काम करते थे एट ए हाई पोस्ट, सब छोड़ के ही हैज कम ओवर हियर एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ही इज डूइंग हिज जॉब और सब जिम्मेदारी ली है। और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर हियर उनको कल्चरल वैल्यूज सिखाया है, इट्स वेरी क्रेडिटेबल। सो जो अभी वीडियो देखने वाले हैं, you should come forward and help out these students like this lone warrior। ये सिंगल योद्धा यहाँ पे लड़ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि थोड़ी तो हेल्प करो, कुछ तो